So we'll be doing this only, which was in your syllabus earlier, and it is in your syllabus as such. It's a part of your experiment. Okay, so यहाँ पर आपके पास basically you have mainly two options. One is structure drawing, another is like structure बनाने का. एक second. One is structure के लिए and another is draw करने के लिए. So we'll start with structure only. Structure का मतलब है कोई भी आपको molecule का structure अगर बनाना है. So चलिए vertically हम proceed करते हैं. So you have many options here. For example, जो सबसे पहले highlighted option है that is periodic table only. So when you click it, you find all complete periodic table. जो भी up to date periodic table है वो सब सारे के सारे elements are available here. If in case you want to say pick cobalt, click on that particular element and place it here. So जो भी आप यहाँ पर element select कर रहे हैं, if in case it is metal, it will come with its valency, जो भी उसकी सबसे stable valency है, valence state है. Or otherwise, if in case, for example, you are picking up carbon or something, it will be here as hydrocarbon. Similarly, nitrogen will be here with its all valency satisfied by hydrogen. So see, if you place in, what I mean to say is, if in case you place carbon, it will be CH4, nitrogen will be NH3, oxygen will be water. But if in case you place any metal, it can be cobalt, palladium, or something. Yes. Second. So if in case it's cobalt or something, just a second, admit. Just a second. Vidit is a part of this class. Vidit, you there? Yes, ma'am. हम एक्चुअली वो मैम वो डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट हुआ था. Okay, okay, okay. So now, okay. So आप जो भी यहाँ पर metal place कर रहे हैं, metal will be there as it's, यार, this is really good. So metal यहाँ पर अपनी valency के साथ place होगा और otherwise जो भी आपके non metals हैं, they will be placed here like this, like hydrogen के साथ जो उनकी valency satisfy होती है उसके accordingly they will be placed here. So this was about placing your metals or non metals on the chart. For example, hydrogen, if in case you put it here, it will be H2. You can try all of them. F will be HF. If in case you select any metal, it will be with its valency. जो सबसे stable उसकी valence state है, उसके साथ वो वहाँ पर place होगा. So this was about these metals and non-metals. Now, if in case you want to make bond, तो यहाँ पर this is, यहाँ तक मैंने ये discuss किया फिलहाल. ये सब कुछ which is a part of your periodic table only. Which is a part of your periodic table only. Okay. So now let's discuss about your bond formation. अब मान लीजिए by default, if in case whatever metal is selected here, आप जब bond formation select करेंगे तो वो metal के साथ ही वो bond formation proceed करेगा. What it means is, for example, you have selected carbon. Carbon is selected here. You selected carbon. Now if in case यहाँ पर bond formation के लिए कई सारे options हैं, right? So if in case you click this, तो इसका मतलब क्या है? Draw normal का मतलब क्या है? Every time you place this cursor and you click, this carbon will be placed separate, right? कोई इनके बीच में कोई relation नहीं है, कोई continuation नहीं है. Similarly, if in case you select nitrogen and then by default it is selected, a single bond is selected, so it will be draw normal. Every molecule will be placed separately. So ये option है. अब if in case you want to draw continuous, so इसका मतलब क्या है? अगर आपने ये continuous draw continuous opt किया है and then you click से carbon पर click है या कोई भी आप element यहाँ click करते हैं, so every time you click it here, it will be continually added with the previous जो भी आपका previous जो आपका element है उसके साथ it will be added. तो ये continuous bond formation will be there. So for example, if in case I select say nitrogen, ये completely nitrogen का bond formation होता चला जाएगा. हर अगला जो molecule है वो पिछले molecule के साथ attach होता चला जाएगा. If it is oxygen, it will be OH2 and accordingly it will be added.
आपको एक पॉलीमर चेन बनानी है, जैसे CS10 में वी स्टार्टेड पॉलीमर टुडे, अगर आपको पॉलीमर चेन बनानी है तो व्हाई टू गो फॉर दिस, देन यू हैव अनदर ऑप्शन व्हिच इज ड्रॉ चेन्स। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इट इज कार्बन, इफ इन केस यू डू नॉट सेलेक्ट एनीथिंग इट विल बी बाय डिफॉल्ट कार्बन ओनली। तो मान लीजिए आपने ये ड्रॉ कॉन्टिन्यूस ड्रॉ चेन सेलेक्ट किया है एंड देन दिस कार्बन इज सेलेक्टेड। तो अब क्या होगा, द मोमेंट यू क्लिक इट एंड देन व्हेन यू ड्रैग इट, ये आपको साथ साथ देता भी चला जाएगा। इफ यू कैन सी माय pointer very clearly, carbon 13, carbon 14, 15, कितनी बड़ी चेन आपको बनानी है, इट विल बी कंटिन्यूली गिविंग दिस। सो दिस इज अगर आपको जब पॉलीमर चेन बनानी है। सिमिलरली इफ इन केस आपने नाइट्रोजन सेलेक्ट किया, इट विल बी ए पॉलीमर चेन ऑफ नाइट्रोजन। इफ इन केस आपको कार्बन और नाइट्रोजन की चेन बनानी है, तो मान लीजिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, बट डिस्कसिंग फर्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल आपको कार्बन की से 10 चेन बनानी है, तो यू सेलेक्टेड कार्बन एंड देन यू went for 10 carbons, and then you selected say nitrogen की आपको chain बनानी है, then you started from here and then you will go for nitrogen, so उसके बाद आपके nitrogen will be starting, so this is how you do. Then see if in case आपने एक कार्बन की चेन बनाई, मान लीजिए it is a continuous, मान लीजिए आपने कार्बन पॉलीमर बनाया। नाउ इफ इन केस अगर आपको बीच में कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है या फिर ईथर ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है या कुछ भी आपने ऑक्सीजन नाइट्रोजन बीच में इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट विल यू डू, यू विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईथर ग्रुप करना है, यू सेलेक्टेड दिस ऑक्सीजन, और आपको जहां प्लेस करना है क्लिक ऑन दैट कार्बन, मतलब आप यहाँ पर आए, जैसे ही पॉइंटर लाए यू क्लिक इट, एक सेकेंड, अच्छा वो continuous है, sorry, so yeah, this single, now you click it continuous में, since it was not deselected, तो continuous था तो वो automatically उसके साथ continually ले रहा था। so अगर आपने बीच में ether place करना है तो you need to take it normal, कि normal आपने इस particular element को touch करना है और आपने continually कुछ नहीं करना है। if in case you take chain और continuous तो फिर वो उसके साथ जैसे अभी hydroxyl group ऐड किया वैसा होगा। सिमिलरली अगर आपने नाइट्रोजन बीच में कहीं इनकॉर्पोरेट करना है, इट विल बी से नाइट्रोजन विद दिस ड्रॉ नॉर्मल सेलेक्टेड। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने कार्बोनिल बनाना है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लेस ऑक्सीजन हियर इन द विसिनिटी एंड देन सिंस ये ड्रॉ नॉर्मल ही सेलेक्टेड है, देन यू कैन बॉन्ड इट विद कार्बन, राइट। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना। अब अगर आपने इस बॉन्ड को कार्बोनिल बनाना है फ्रॉम हाइड्रोक्सिल, इट्स हैपनिंग, somebody is waiting in lobby in case, yes, और जी क्या हाल है, I don't know who is this, anyways, so if in case आपने हाइड्रोक्सिल बनाया है और आप इस हाइड्रोक्सिल को कार्बोनिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक्चुअली आपने इस COH को CO में कन्वर्ट करना है, so you select this bond and then click again, so this bond will be converted to double bond. सिमिलरली मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड क्रिएट करना है, सेलेक्ट द बॉन्ड, सी दिस इज सेलेक्टेड ड्रॉ नॉर्मल, सो सिंस ड्रॉ नॉर्मल का मतलब है आप बॉन्ड के साथ ही प्ले कर रही हैं, सो यहाँ पर आपने जैसे ही दोबारा सेलेक्ट किया इट विल बी ओके। मैं फिलहाल आपको I'll take your questions now. I don't know what's going on lobby में, but I'll take your questions. अभी तक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, your questions please. अभी तक हमने डिस्कस किया ये पीरियोडिक टेबल, आपने जो भी एलिमेंट्स हैं जब आप उनको प्लेस करेंगे वो अपनी वैलेंसी के साथ आएंगे, यानी कि +1 +2 +3 ये जो भी है नॉन मेटल को जब आप प्लेस करेंगे तो वो हाइड्राइड्स की तरह यहाँ पर प्लेस होंगे। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपने ये बॉन्ड्स कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिस इज कार्बन, सो यू प्लेस्ड कार्बन, you placed another carbon and then you placed say you wanted to place nitrogen, आपने नाइट्रोजन प्लेस किया। अब आपको इनके बीच में बॉन्ड बनाना है तो what will you do, it is already selected, if in case it is not selected like it is draw continuous or draw chain, you need to select draw normal। आपने draw normal select किया and when you drag this bond from this to this automatically वो bond formation करेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ड्रॉ नॉर्मल करके उनको बॉन्ड फॉर्मेशन कीजिए या फिर ड्रॉ कॉन्टिन्यूस में आप उसको चला सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर। अगर कॉन्टिन्यूली आपके पास कार्बन चेन्स एंड देन गो फॉर ड्रॉ कॉन्टिन्यूस, अगर आपके पास कार्बन नाइट्रोजन आ रहा है देन गो फॉर ये दिस ड्रॉ नॉर्मल। सिमिलरली आपने इसको प्लेस करके यू क्लिक इट एंड देन
You release it when you reach another metal, you release it and then it will be bonded. Similarly, अगर आपने यहाँ pi bond create करना है, go on the bond and then double click it, it will be pi bond. Another you click it, it will be triple, and another when you click it, it will be single bond again. So accordingly उसको पता है कि valency के according carbon कितने bonds accommodate कर सकता है. Similarly, if you go here and then again it will come back. Please your questions अभी तक. जो लोग साथ में ट्राई कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन या फिर जो है वो भी, एनी क्वेश्चन प्लीज. आई गेस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Say yes or no. You can unmute yourself right now. Yes. No doubts. No doubts. Okay. So next is जो आपके projections होते हैं basically. ये we have done this ये हम करेंगे अभी. We have done this normal, continuous and then chain. अब जो आपके projections होते हैं, अगर वो projections आपने करने हैं तो for example if in case, right, अगर आप यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए फ्रॉम कार्बन टू दिस, कार्बन नहीं होना चाहिए, इट शुड रेदर बी इन अपोजिट डायरेक्शन, यू अगेन क्लिक इट, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. तो ये जो प्रोजेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं, जहां पर हम स्टीरियो बॉन्ड्स बेसिकली, जहां हम 3 टाइप के बॉन्ड यूज करते हैं. दिस इज अबव द प्लेन बॉन्ड एंड देन यू हैव अनदर बॉन्ड विच इज बिलो द प्लेन. then you can do this also if in case again इसका भी आपको डायरेक्शन रिवर्स करना है, you can reverse it. Similarly अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, will be converted. And third is your normal bond in the plane. So basically this is your above the plane. Okay, sorry, this is your above the plane, this is your below the plane, और ये जो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, these are your in the plane bonds. तो अगर आपने प्रोजेक्शंस बनाना है, जो हो सकता है कि आपको जो मॉलिक्यूल दिया जाए, मतलब नेक्स्ट टाइम दिया जाए, तो उसमें प्रोजेक्शंस आपको बनाने पड़े, एंड स्टीरियो बॉन्ड्स मतलब आपको बनाने पड़े. देन बाय डिफॉल्ट इफ इन केस यू वांट टू, आपको उसको सेट करना है कि दिस यू नीड टू सेलेक्ट इट. ओके, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट. सो दिस इज बेसिकली लेसो ऑन या ऑफ. तो अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करना है तो यू नीड टू क्लिक हियर. तो जिस मोमेंट पे अगर आपको ऐसा दिखेगा, सी ये स्क्वायर दिखेगा, इसका मतलब नाउ यू कैन सेलेक्ट इट लाइक दिस, और इफ इन केस हियर यू कैन सेलेक्ट इट लाइक दिस. सो बेसिकली सेलेक्ट करने के लिए पूरे मॉलिक्यूल पर अगर आपको करना है, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को नहीं करना है, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करना है, जो भी वो हम आगे देखेंगे, अगर लेकिन पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर काम करना है या डिलीट करना है मे बी, देन यू नीड टू सेलेक्ट हियर, यहाँ पर. ओके, लेट्स कम बैक टू द बॉन्ड्स ओनली. सो ये है आपके एरोज, जो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स रहते हैं. सो अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, अगेन आप जितनी बार उसको सेलेक्ट करेंगे उसका डायरेक्शन विल बी चेंज्ड. तो अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, दैट अगेन डिपेंड्स, आपके डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं. इट कैन बी डैश बॉन्ड्स, इट कैन बी सॉलिड बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो जो भी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट. सो दिस वन इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देन यू हैव दिस टाइप ऑफ बॉन्ड. इफ इन केस आपको प्रोजेक्शंस नहीं चाहिए एंड आपको उतना लेवल तक कोर केमिस्ट्री फिलहाल आप नहीं पढ़ रहे हैं, बट देन इफ इन केस अगर आपको प्रोजेक्शंस नहीं चाहिए, यू हैव अनदर नोटेशन दिखाने के लिए. सो दैट इज कि अगर आपको ये वाले चाहिए बॉन्ड्स, डिस्टॉर्टेड बॉन्ड्स एंड अदर बॉन्ड्स आल्सो, या डैश बॉन्ड्स, सो देयर यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंगली जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से, अगर आपको जिस टाइप के बॉन्ड चाहिए. देन यू हैव डीलोकलाइजेशन. ओके, सो लेट्स again say this. Okay, I selected this all, and then if in case I want delocalization, मुझे लग रहा है इसमें शायद होगा नहीं, 3 होने चाहिए. या डन. सो इफ इन केस डीलोकलाइजेशन मुझे दिखाना है बॉन्ड्स का, या फिर मे बी यहाँ पर डबल पाई बॉन्ड्स होते तो इवन डीलोकलाइजेशन वुड हैव बीन बेटर. बट अगर मुझे दिखाने की पूरा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, जैसे हम रेजोनेंस वगैरह में भी दिखाते हैं कि डीलोकलाइजेशन है, जैसे बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डीलोकलाइजेशन, अगर आपने पूरा मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया है तो अकॉर्डिंगली वो उतने ही पार्ट पर, जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया है, वो बॉन्ड डीलोकलाइजेशन दिखाएगा. सो दिस इज व्हाट इट इज, डीलोकलाइजेशन. ओके, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, सो इट डिड नॉट डू दिस. सिमिलरली again selecting this, ये I guess ये this is this background with your background. So basically
delocalization with shadow, nothing else. मतलब again that depends on कि आपने किस पर्पस के लिए उसको ड्रॉ करना है. तो most probably इस तरह के तो obviously आपको नहीं असाइनमेंट देंगे, but then with shadow that depends again your objective क्या है. Simple delocalization is this only, कि जो डॉटेड हम delocalization curve basically दिखाते हैं रेजोनेंस के केस में, it is this only and this is all other notation कि आपने अगर दिखाने एरिया में है, और that is another application. Okay, so this is number, show number. So basically मान लीजिए आपने ये select किया है and then you मान लीजिए and then say you selected nitrogen and then this. Now show number मतलब you select this all, select this all and then show number. So ऑटोमेटिकली जिस फॉर्मेट में आपने ये एटम्स प्लेस किए हैं उस फॉर्मेट में ये नंबरिंग करता चला जाएगा. लाइक मैंने सबसे एंड में, दिस इज नॉट आईयूपैक के अकॉर्डिंग, सबसे एंड में नाइट्रोजन NH2 प्लेस किया, उसने इसके अकॉर्डिंग नंबर दिया. सो दिस इज हाउ. हाँ, लेकिन जहाँ पर आपके ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो नंबरिंग डबल ट्रिपल बॉन्ड को पहले देने बैठते हैं रेदर देन कि आपके जो आपके हेटेरो एटम्स है या उसके हिसाब से. मतलब इट्स अबाउट कि अगर आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको नंबरिंग वो उसके पहले देगा एंड देन जो आपने एटम्स प्लेस किए हैं सिंस डबल बॉन्ड एंड में बनाया था तो वो उसको सबसे पहले नंबर देते हैं, बाकी जो एटम्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंग. बट अदरवाइज इफ इट इज अबाउट सिंगल बॉन्ड तो जैसे जैसे आप प्लेस करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो नंबर देगा. देन दिस इज रिएक्शन का प्लस. बेसिकली अगर इफ इन केस अगर आपको कोई भी रिएक्शन लिखना है, मान लीजिए से इट इज CS3COOH, CS3COOH. Okay, CS3COOH plus whatever. So that plus is this. This is your कि अगर आपको प्रॉपर रिएक्शन लिखना है कि ये मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विद दिस, फॉर एग्जांपल आपका सपोनिफिकेशन एक्सपेरिमेंट इज ओवर नाउ, तो हो सकता है सपोनिफिकेशन का आपको सामने, मतलब इट कैन बी एनीथिंग. सो दैट रिएक्शन का प्लस सिंपल बात है इज दिस. कुछ भी आपको रिएक्शन अगर लिखना है. नाउ दिस इज रिएक्शन का एरो. इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी फॉरवर्ड, इट कैन बी रिवर्स, रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम, जिस भी टाइप का आपका रिएक्शन है दिस इज दिस ओनली कि ये प्लस ये गिव्स दिस. बस. तो अगर आपको ये रिवर्सिबल चाहिए अकॉर्डिंगली, आपको जो भी चाहिए बेसिकली, देन यू कैन सेलेक्ट इट. एंड देन यू कैन प्लेस इट हियर. तो जो भी आपको रिएक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग. अभी तक कोई डाउट? ओके, सो नाउ दिस इज रिएक्शन एरो लेबलिंग. तो आपने जब इसको सेलेक्ट किया बेसिकली यू सेलेक्टेड द एरो. अब आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर लिखने के लिए, नीचे लिखने के लिए, उस एरो के ऊपर या नीचे. फॉर एग्जांपल इफ इन केस आई राइट अबव द एरो इट विल बी, मान लीजिए, and below the arrow. So this is how, and then you can select the font also. One second please. Okay, so आप इसका फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. मतलब मान लीजिए इफ इन केस आई सेलेक्ट दिस अगेन, यहाँ पर मैंने जो भी फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज जो भी मुझे सेलेक्ट करना है दैट आई कैन डू. मैं बोल्ड कर सकती हूँ, अनबोल्ड, जो भी मुझे करना है फिलहाल आई कैन डू ऑल दैट. सो दैट्स इट. देन दिस इज रिएक्शन कैलकुलेटर. सो दिस इज बेसिकली जब आपका एक्चुअल कोई रिएक्शन है और उसका काइनेटिक्स निकालना है तो दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्योंकि वो दिया भी नहीं जाएगा. सो दिस इज अबाउट काइनेटिक्स कि जब आपका कोई भी से फिक्शनल आपने रिएक्शन लिखा एंड देन यू वांट टू कैलकुलेट काइनेटिक्स, तो अकॉर्डिंगली इट विल डू. एटम एटम मैप अगेन, लेट इट बी एटम एटम मैपिंग में नहीं, लेट इट बी, ये भी नहीं रहने दीजिए. नाउ दिस इज जस्ट अ मिनट क्लास. सो दिस इज ब्रैकेट. सो अगर आपने कहीं भी ब्रैकेट प्लेस करना है, यू सेलेक्ट दिस ब्रैकेट टूल. नाउ इट विल कम कि आपने जो ब्रैकेट प्लेस करना है वो किस टाइप का है. फॉर एग्जांपल योर स्टाइल्स आर देयर ब्रैकेट के. आपने हाँ CS10 वी डिड स्टडी को पॉलीमर एंड होमोपॉलीमर टुडे. सो यू हैव ऑल दिस पॉलीमर्स का जो भी है
for example, if in case you select copolymer, you will see it here now, the options. Array. Head to tail. See, this is alternate copolymers, random copolymer, block copolymer that we did study today. तो CS12 we'll be doing this, but otherwise मतलब accordingly, since ये तो हमने आज पढ़ा इसलिए हमें एक idea है. Otherwise also accordingly जो भी आपको फिलहाल application के लिए use करना है, you have all that cross linking if in case you want to do head to tail cross linking करनी है, tail to tail करनी है, sorry head to head करनी है accordingly. तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं. Then number for example if in case you want to make polymer. तो what number polymer, कितना नंबर है आपका, मान लीजिए that's 14. So apply. So okay, bracket, this is applied. तो जहां भी आप सेलेक्ट करेंगे it will be applied there. So accordingly आपको नंबर चेंज करना है, apply, it will apply it here. आपको ब्रैकेट चेंज करना है, apply, it will apply whatever you want to apply. then जो भी फिलहाल आपको करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली अगर आपने कोपॉलीमर लिया तो इट विल आस्क फॉर दिस कि आपको ब्लॉक कोपॉलीमर है, अप्लाई, इट विल राइट ब्लॉक कोपॉलीमर कि ये जो है इतना मर ब्लॉक कोपॉलीमर है. सो बेसिकली यू हैव दिस हेड टू हेड, दिस इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास. तो वो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, बट दैट ऑल्सो यू कैन नोटेशन यू कुड हैव गिवन कि इतना नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है इसका, मान लीजिए से 12, अप्लाई. सो दिस इज इतना मॉलिक्यूलर average molecular mass है. and head to head का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल इफ इन केस you want to write this is block copolymer, तो ये block copolymer है, and there HH की जगह you could have written कि head to head में कि basically यहाँ पर आप information you could have written कि कितना मर है ये, मतलब 3 मर 4 मर or something. तो accordingly you can do this. Okay, so this was about brackets, and then change position. Just a second. So change position is this, किसी पर्टिकुलर एटम की, फॉर एग्जांपल दिस इज OH, बॉन्ड की नहीं, सॉरी, इट जस्ट एटम. तो आप जैसे CH3 है, अगर आपको इस H की पोजीशन, क्योंकि आप अगर कोई बल्कि मॉलिक्यूल बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बीच में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, एंड देन यू वांट टू चेंज पोजीशन ऑफ दीज एटम्स, तो वो एटम्स की पोजीशन चेंज करेगा अकॉर्डिंगली. अगर आपको बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज करनी है, देन बॉन्ड्स की पोजीशन, दिस इज द ऑप्शन. वो जिस बॉन्ड को आप सेलेक्ट करेंगे उसको फिक्स रखते हुए वो बाकी बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज करेगा, इधर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. सो दिस इज बेसिकली वर्टिकल, एंड देन ये ऊपर नीचे, मतलब दिस इज वर्टिकल एंड दैट वाज हॉरिजॉन्टल. तो जिस बॉन्ड को आप फिक्स रख रहे हैं वो फिक्स रहेगा, अदरवाइज बाकी जो बॉन्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप उसको ओरिएंट कर सकते हैं. Similarly, if in case you want to flip on bonds, so this flipping, this like on paper flipping. Then if in case you want to flip top to bottom, accordingly वो top to bottom जो भी है, this all you can play. Just a second. Okay. Okay. So here, for example, if in case yeah, this is flip top to complete molecule, not bond, sorry. This was on bond, this was on bond horizontally, जो आपको set करना है, keeping one bond fixed, बाकी आपको horizontal set करना है. This was vertically जो आपको set करना है, and then this was complete flip on bond, whereas this is complete flip on this molecule. तो अगर आप इसको select कर दे every time, this will flip top to bottom, and then accordingly ये on paper flip करेगा. This is how it is. This is instant template. If in case you want to take instant template of this, right? Instant template you want to create. So when you place it here, right? Take a second, please. Just a second. Okay, उसमें plus भी आ रहा था. Just a minute. Say I take this. Okay, and an instant template. So this template it has taken and it will place here. So this is instant template. हाँ, इनफैक्ट इफ इट इज प्लस ऑल्सो देन ऑल्सो यू नीड टू सेलेक्ट ऑल. तो अगर वो प्लस प्लस भी होगा तो भी वो टेम्पलेट में उसको ले लेगा. तो ये पूरा टेम्पलेट इट विल टेक जो भी आपने किया. फॉर एग्जांपल अगेन डूइंग दिस, और मान लीजिए लेट मी ऑल्सो ट्राई दिस CH4 प्लस से NH3. So if in case I want to take template of this template, okay, so it's not, so because of plus only it is problematic, right? So it does not entertain this plus or something. So if in case मैं इसको template की
एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को टेम्पलेट लेना चाह रही हूँ, इट विल टेक इट. सो नाउ यस, सो मॉलिक्यूल, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का टेम्पलेट यू कैन टेक, अगर वो प्लस का है या इट इज मल्टीपल मॉलिक्यूल. लेट मी ट्राई मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आल्सो विद यू गाइस. आई आल्सो लर्न से if in case मैं इन तीनों का टेम्पलेट आई वांट टू पिक अप, so it will not, see, it will not pick up. So it has to be a particular molecule. वो बड़ा छोटा जो भी हो सकता है, but then it has to be a molecule. For example, आपके पास कई instant templates भी हैं. You have template windows here. For example, if in case I want to select this, ठीक है. And similarly, अगर आपको structure select करना है template window का, right? And then आपने इस, मान लीजिए, सो आपने ये एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया, दिस आई अगेन टेल, बट आपने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया और आपने उसमें कुछ चेंजेस किए. ये तो बाय डिफॉल्ट कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके टेम्पलेट हैं, जो रिनाउंड मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हैं, बट देन जस्ट अ सेकेंड, कुणाल इज इन दिस क्लास 245. Yes, ma'am. ओके Yes, sir. ओके. सो आपने ये एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया एंड देन आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की. मान लीजिए इस टेम्पलेट में यू डिड सम मॉडिफिकेशन, एज इन आपने इस कार्बन को यू रिप्लेस विद ऑक्सीजन एंड नाउ दिस मॉलिक्यूल इज डिफरेंट. आपने जो भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग लिए, सी दिस वाज योर मॉलिक्यूल एंड देन this molecule is entirely different from the molecule you had selected from template. Now you want to pick up this template. तो हर बार आपको वो template pick up करके ये changes करने की जरूरत नहीं है. Just delete it. Okay. So select this as a whole and then template, and now it is picked up. This is what I'm saying. So okay. Then let's see. Now this is your clean structure is basically, अगर आपका ठीक है, अगर आपका कोई बहुत ही अजीब सा मॉलिक्यूलर बहुत, तो आपको बेसिक उसका स्ट्रक्चर है ये, तो इट विल गिव यू दैट क्लीन स्ट्रक्चर. टॉटोमेरिक फॉर्म. ओके, सो बेसिकली कीटो इनॉन जो टॉटोमर्स हैं से हम बनाते हैं. मान लीजिए अगेन वी प्लेस CH3 एंड देन and oxygen, right? So now this is your keto form. So इसको अगर मुझे, let me also try, right? And now it is chemical is most favorable. अच्छा, तो this is most favorable if in case I it is also, पता नहीं, I need to check this. Maybe this. नहीं. Okay, I'll check this ketoinon. Sorry, this I'll check. दिस इज 3D ऑप्टिमाइजेशन, बट मैंने ये चेक किया, मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है. मे बी आपके इसमें खुल रहा हो, मेरे इसमें 3D व्यू में कुछ प्रॉब्लम है. मतलब आई इंस्टॉल्ड इट एंड दोबारा मैंने किया आज, बट देन शायद आपके इसमें द मोमेंट यू क्लिक इट ना, एक सेकेंड प्लीज दोबारा. रेशित इज इन दिस क्लास 246. Yes, ma'am. So let me select this complete structure and then it was not opening earlier, maybe. Let me try. The moment you actually click it ना, आपकी एक अदर विंडो खुल जाती है, एक ब्लैक विंडो, ब्लैक बैकग्राउंड वाली विंडो, एंड वहां पर आपका ये 3D स्ट्रक्चर खुलता है. तो मेरे पास ये फिलहाल नहीं खुल रहा है, बट इट डज ओपन. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एट माय एंड, बट जिन लोगों का ये इंस्टॉल हो गया, प्लीज ट्राई इट आउट. जैसे ही आप ये 3D ऑप्टिमाइजेशन क्लिक करेंगे तो आपको वो 3D स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा. फिलहाल मेरे पास नहीं हो रहा है. अगर किसी का हो जाता है तो मुझे बता दीजिए प्लीज.
आप में से किसी का खुला है 3D स्ट्रक्चर? 3D व्यूअर में तो खुल रहा है बट यहाँ पर भी ओके चलिए एनीवेज। ओके एक सेकंड प्लीज। नाउ दिस इज जो भी आप मॉलिक्यूल बनाया है इसका 3D व्यू देखने के लिए, वहां भी आपका 3D स्ट्रक्चर बॉल एंड स्टिक में खुलता था बट आई डोंट नो मेरा क्यों नहीं खुल रहा फिलहाल। बट जो भी आपने मॉलिक्यूल बनाया है उसका 3D व्यू इफ इन केस यू वांट टू सी, सो दिस इज हाउ यू सी इट। नाउ इफ इन केस यू वांट टू रोटेट इट और आपको उसको जो भी करना है, फॉर एग्जांपल इफ इन केस यू वांट टू ड्रैग इट, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, या इन केस यू, अरे यार if in case you want to drag it you need to select this option. I don't know why is it not getting dragged. And then if in case you want to rotate it, ये बहुत slow है आप देख सकते हैं, पता नहीं it's not getting selected. Anyways okay, but अगर आपको ये रोटेट करना है, अगर आपको ड्रैग करना है तो ये ऑप्शन है ड्रैग करने के लिए, रोटेट करने के लिए ऑप्शंस हैं, आपको लार्ज व्यू देखने के लिए ऑप्शंस हैं, यू हैव अनदर फॉर्मेट, इट्स टेकिंग टाइम, या यू हैव अनदर फॉर्मेट जिसमें आप इसको ले जा सकते हैं। सिमिलरली कई सारे फॉर्मेट्स में जैसे हम बुक में देखते हैं 3D स्ट्रक्चर्स जो हैं, या सिमिलरली इफ इन केस I don't know why is it not, yeah it's very slow, yeah Mine so is rotating. आपका हो रहा है? Yes, ma'am. हाँ मैं वही बोल रही हूँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज इवन इफ व्हेन आई एम सेलेक्टिंग ना यू कैन सी इट्स लाइक टेकिंग, यू कैन सी माय पॉइंटर, इट्स टेकिंग a lot of time in selecting also, तो कुछ इशू है। चलिए एनीवेज, सो ये मैंने कब कमांड दिया था रोटेट करने के लिए, या बेचारा कर रहे हैं। सो इन द सेम वे यू कैन लाइक यू कैन इफ इन केस यू वांट टू ड्रैग इट एंड पुट इट समवेयर एल्स, दिस इज द ऑप्शन जो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा मेरे पास, बट देन you can, yeah, now selected, let me try if in case I want to shift it to my left, let's see, just a second, somebody else, भावना तो है क्लास में, I know, okay, but करना भाई, मेरे पास अभी फिलहाल नहीं हो रहा, I don't know what is the issue, but all the features please explore। ये 3D मेरे पास नहीं फिलहाल और ओपन हो रहा, आई थिंक मेरे इंस्टॉलेशन में कुछ इशू है, ये नहीं हो पा रहा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद करती हूँ। दिस इज जस्ट लाइक वन सी डिफरेंट 3D जो भी आपके फॉर्मेट्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा क्लमजी है, अगर आप बहुत क्लियर स्ट्रक्चर लेंगे, अच्छा स्ट्रक्चर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा 3D व्यू दिखेगा। फॉर एग्जांपल इफ इन केस से दिस वन, राइट, एंड दिस, ओह देखो देखो देखो, इट वाज चेन ना, या सो मान लीजिए दिस, if in case I want to see it in 3D, या सो हाँ, क्लीन स्ट्रक्चर से मेरा यही मतलब था कि जैसे हमने यहाँ पर कार्बोनिल रखा है एंड देन दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो बेसिकली ऑक्सीजन पार्ट उसने अलग कलर से लिया है। सिमिलरली अगर आप कोई और हेटेरो एटम लेंगे इट विल शो इट विद डिफरेंट कलर। सिमिलरली अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है, आई डोंट नो कितना, बट देन हाँ अकॉर्डिंगली अगर ये ड्रैग होता है तो आई, या आपको इसको रोटेट करना है, नहीं हो रहा ड्रैग तो भाई मेरा तो नहीं हो रहा। If in case you want to rotate it or something that you can do, और ये continually rotate, अगर आपको चाहिए कि किसी फंक्शन के लिए continually rotate करता रहे तो these are the options, you can see my pointer and then you can try it on your laptop। तो फिलहाल चलिए आप प्लीज ट्राई कीजिए अपने पार्ट पे, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट के लिए, और ये है आपका बेसिकली जो भी आपका रोटेशन इन प्लेन आउट ऑफ द प्लेन
और ये आपका प्रॉपर 3D रोटेशन के लिए, एंड वन इज फॉर कॉन्टिन्यूस मूवमेंट. प्लीज ट्राई, मेरा तो नहीं हो पा रहा है. So anyways, these were your option for making the structures. And अगर आप यहाँ नीचे देखिए, we have discussed these all. Yes, please. Ma'am, it is working. I know it's working, it does, but मेरे पार्ट पे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है. I don't know what is the problem. मेरे इसमें 3D स्ट्रक्चर भी क्लियरली ओपन नहीं हो रहा है, और रोटेशन वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो पता नहीं जो भी है. बट देन आपके पार्ट पे हो रहा है. दिस इज व्हाट आई वांट टू नो ना. तो ठीक है, आप करिएगा इसको 3D जो भी रोटेशंस वगैरह हैं. ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस दिस पीरियोडिक टेबल और ये एलिमेंट्स वगैरह. ये एरो है, इफ इन केस यू क्लिक दिस, ये पूरा ये वही सब कुछ है जो बेसिकली यहाँ पर आपके और ये एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड. इफ इन केस यू कीप यूजिंग पर्टिकुलर एलिमेंट, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये जो भी आप एलिमेंट ज्यादा यूज करते हैं ड्यूरिंग योर वर्क या जो भी है, देन इट इज रिप्लेस्ड ऑटोमेटिकली. तो हम जनरली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही सब कुछ ज्यादा यूज करते हैं एवरी टाइम वी ओपन इट. सो बाय डिफॉल्ट दीज आर ऑन टॉप. बट इफ इन केस वी आर वर्किंग मोर विद गोल्ड और समथिंग एंड सिल्वर और नोबल मेटल, हम उनके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लिस्ट रिप्लेस हो जाती है जैसे जैसे आप अपने एलिमेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर आपका टेक्स्ट है. इफ इन केस जब आप रिएक्शन लिखते हैं, तो यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट द रिएक्शन, और रिएक्शन के नीचे और मे बी सम पैराग्राफ और सम टेक्स्ट यू वांट टू राइट. So that is something you can write here, and you can change the set format and the size and bold and italic and everything जैसे आप word में करते हैं, that you can do. Okay, so this is your text. Then this is your जो commonly जो हमने text basically इसमें दोनों टाइप के text involved हैं. One is जैसे हम जो कंपनी से बाय डिफॉल्ट है, जैसे अभी हमने इसको डाउनलोड किया, आप लोगों ने फिलहाल अभी डाउनलोड किया, और जो कॉमन टेक्स्ट, जो कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स बेसिकली जैसे COH है, COET है, जो कॉमनली यूज होते हैं, वो यहाँ पर हैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बेसिकली. और अगर आपने कोई इंसर्ट करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, एंड यू कैन सेव इट, राइट. सो यू कैन पुट समथिंग एंड देन यू कैन सेव इट, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर दिस. ओके, तो जो भी आपको फिलहाल आपको से इस वाले को सिलेक्ट करके से यू वांट टू पुट लाइक वाटर, एवरी टाइम आई से आई वांट टू लेबल H2O, तो वो वाटर ही लिखे उसके नीचे, तो दैट यू कैन डू, एंड देन यू कैन सेव इट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज योर टेक्स्ट. ये टेक्स्ट है जो आपने लिखना है, ये जो कॉमनली अवेलेबल टेक्स्ट है. एंड अगर मान लीजिए आप किसी रिएक्शन में आप कुछ लिखते हैं, देन यू सेव इट, इस मॉलिक्यूल का नाम देखिए, यू सेव इट, तो दैट विल बी सेव्ड एंड एवरी टाइम यू कैन यूज इट. Not that by default, sorry, not that by default it will take it, but then you can use it कि आपने इसको water लेना है. And this is radical label. This is basically अगर आप कोई radical reaction करते हैं, जो हम polymers में करेंगे next time. So if in case for example radical 1 है, radical 2 है, radical 3 है, you want to label it कि this is my radical 1, radical 2 or something, or this carbon has this particular molecule has this. Just a second. एक second बेटा. Shivansh is in the class. So say this particular carbon is, say I want to label it as R1. This is my R1. So this will be R1. So basically ये जो कार्बन है, this is my इस कार्बन पर रेडिकल है, और मैं इस मॉलिक्यूल को R1 की तरह कंसीडर कर रही हूँ. सिमिलरली वैसे तो एक मॉलिक्यूल पर दो रेडिकल नहीं हो सकते, बट फिलहाल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो मैं उसी पर रेडिकल बना देती हूँ. सो मान लीजिए दिस इज माई R3. अकॉर्डिंगली बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट, मेरा ये एक रेडिकल है, ये मेरा दूसरा रेडिकल है, तो सेम मॉलिक्यूल्स पर ऑब्वियसली अगर रेडिकल होंगे तो साइक्लोमराइजेशन हो जाएगा. ओके, दो से ज्यादा रेडिकल ऑब्वियसली कैन नॉट एग्जिस्ट. अगर दो होंगे देन ऑल्सो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. बट देन फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिफरेंट से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट रेडिकल्स हैं आपके पास, तो अकॉर्डिंगली यू कैन लेबल कि दिस इज माई R1, दिस इज माई R2, और इस पर्टिकुलर कार्बन पर तो बाय डिफॉल्ट इट अंडरस्टैंड्स दैट ये जो भी आपका है से दिस, तो यहाँ पर जो भी है दिस हैज रेडिकल एंड दिस योर दिस मॉलिक्यूल इज से R3. About your radicals, then your positive radical anions, or similarly since it is radical it will not touch it now, so you can place positive radical anion here. For example positive radical anions यानी कि आपका पॉजिटिव यानी कि कैटायन प्लस रेडिकल फॉर्मेशन जो आपकी हो रही है, वो खैर आउट ऑफ योर स्कोप. बट देन
अकॉर्डिंगली। और साथ साथ इफ इन केस अगर ये रेडिकल एनायंस बनाता है तो इट कीप्स इन माइंड द वैलेंसी आल्सो, मतलब ऐसा नहीं कि ये वैलेंसी डिस्टर्ब करके कुछ भी क्रिएट करेगा, तो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द वैलेंसी, द बॉन्ड्स एक्चुअली दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैन अकोमोडेट, तो दैट टेक्स केयर ऑफ दिस। chemical properties is okay, that is some. Then manual numbering, if in case you want to put numbering, एक second, a simple molecule let's make again, मान लीजिए, and then manual numbering you want to do, so say number text after, okay, so now one, every time you place two, manual numbering है, आप किसी को भी कोई भी नंबर दे सकते हैं, दिस इज मैनुअल नंबरिंग ओनली। इफ इन केस यू वांट कि वो नंबरिंग जो है वो स्टार्ट हो से 4 से, क्योंकि आपने शायद पिछले मॉलिक्यूल में 3 तक नंबरिंग दे रखी है, देन अगेन दैट्स योर कॉल, यू कैन सेलेक्ट इट, स्टार्ट एट से 4, ओके। सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू क्लिक इट, इट विल टेक 4, क्योंकि शायद आपने दूसरे मॉलिक्यूल को स्टार्ट में ऑलरेडी नंबर्स दे रखे हैं, एंड देन यू वांट दिस मॉलिक्यूल टू स्टार्ट फ्रॉम से 4th नंबर। दिस इज मैनुअल नंबरिंग, जो भी आप जिसको नंबर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। दिस इज कलर, बेसिकली आपको नीचे कलर्स हैं, तो कलर्स अगर आपको चेंज करने, विदित, भाई विदित कितनी बार आओगे, विदित कितनी बार आओगे? नहीं मैम, मेरा फर्स्ट टाइम मैम इंटरनेट इशू की वजह से लीव हुआ था। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगा शायद पहले भी आप एक बार आई थिंक रीस्टार्ट हुआ था, आई एम सॉरी। नो मैम। ओके ओके, सो एंड दिस इज कलर दैट यू कैन डेफिनेटली, ये तो नंबरिंग ही चल रहा है फिलहाल, ये कलर, कलर मैंने कभी इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं, सो एक मिनट, this might be in draw or something, again I'll have to see this color, I'll have to see, okay maybe text का, नहीं text का color तो, okay this color I'll see, I'll check this color also, to see, I don't know, this color I'll see, okay। So we have done about structure, ये हमने ये लाइन कर ली है, हमने ये लाइन कर ली जो important points हैं, then you have certain templates here also, जो common templates हैं, ये पूरा आपके पास templates का हिसाब किताब है। फॉर एग्जाम्पल इफ इन केस अगेन ये इतने सारे, मतलब आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स का खजाना है इधर, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जो कॉमन नेम के साथ, वो उसका जो भी टेम्पलेट है उसका वो टेम्पलेट आपके सामने रख देगा। सिमिलरली ये इट इज ऑल जो आपको कॉमनली बनाने नहीं है, तो आपका अगर इस पर हैंड्स ऑन अच्छा है तो आपको कई सारे हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने ना पड़े। सो अकॉर्डिंगली use the template. नहीं है, ओके बाकी टेम्पलेट्स, ओके सो ये आपके बाकी टेम्पलेट्स इज हेयर ओनली, राइट। यहाँ पर तो आपके कार्बोहाइड्रेट से लेके डीएनए, मतलब आपके पास पूरा अच्छा खासा एक खजाना अवेलेबल है यहाँ पर, जो आपके कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देन आपके डीएनए आरएनए में जो यूज होते हैं मेनली आपके बेसेस से लेके आपके शुगर जो भी आपके डीएनए का पार्ट है, या न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह। देन प्रोजेक्शंस, जो कॉमन प्रोजेक्शंस हम यूज करते हैं, ऑर्बिटल्स, स्फीरॉइड्स एंड एवरीथिंग, वो सब पार्ट ऑफ टेम्पलेट है, और जो भी आप इसमें मॉडिफाई करेंगे दैट टेम्पलेट यू कैन सेव ऑन योर ऑन यहाँ से, लेकिन वो टेम्पलेट डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो जो भी आपको टेम्पलेट सेव करना है वो अपनी शीट पर अपने आप आपको सेव करना पड़ेगा फाइल में। तो फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, आपने यहाँ से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किया और आपने उसमें जो भी मॉडिफिकेशन किए, देन यू क्लिक ऑन द टेम्पलेट कॉपी करने का, दिस वॉज दिस वॉज द वन कि जो ओके इंसर्ट टेम्पलेट, तो इसमें था बेसिकली आपने जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट किया उसको इंसर्ट इट विल डू। खैर मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए दिया नहीं है। इफ इन केस आई सेलेक्टेड, ओके मे बी 4 और 5 और ए नंबर इज टेम्पलेट में, दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ डन, ओके so okay, so this is how it will do, but template में in any case it has to be a single molecule. Correct me if in case I'm wrong. If in case you are able to do it for example एक reaction के लिए भी आप template उठाने के लिए possible है तो please let me know right now. If in case you are able to pick up the template for reaction, for example for more than one molecule and you are putting reaction in that complete template you can take. I guess you cannot.
टेम्पलेट जो कॉपी है दैट इज पॉसिबल फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आई गेस। अगर आप कर पा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। सो ओके, यहाँ आप यहीं से बात करते हैं। इरेज, दिस इज योर इरेज बटन। बेसिकली ये इरेज है। अगर आपको मैंने तो कंट्रोल ए करके पूरा डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे करना था, बट अदरवाइज अगर आपको चिराग, सो अदरवाइज अगर आपको मॉलिक्यूल वाइज एटम वाइज डिलीट करना है देन यू कैन कंट्रोल जेड। ये पूरा का पूरा सेलेक्टेड है। सो इफ इन केस मुझे डिलीट करना है से एक एक करके, सो है अगर पहले जो ऑप्शन था दैट वाज आई डोंट नो इन केस इट कम्स अगेन, फॉर एग्जांपल दिस कंप्लीट वाज सेलेक्टेड फॉर एनी रीजन स्ट्रक्चर, शायद मैंने ये सिलेक्ट किया होगा टेम्पलेट उठाने के लिए, तो दिस कंप्लीट वाज सेलेक्टेड। So if in case I select delete, it will delete complete molecule. But since you can see complete is selected. If in case मुझे कोई particular delete करना है, if in case I want to delete it, ओहो, if I want to delete, जैसे आप delete करना है molecule, okay. Then this is cut. I need to select it, cut and paste जो आपका simple, and then cut and then you can paste it जहां भी आपको, मान लीजिए अगर आप 3-4 फाइल्स में साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो आप उसको से फाइल न्यू शीट पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपना जो भी डेटाबेस अपना अलग से कर रहे हैं। फिलहाल तो सिंस आपको 1-2 मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे, मे बी 2 या 3, तो आप एक ही पेज पर कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रॉपर रिएक्शंस वगैरह लिखने और मल्टी रिएक्शंस लिखने हैं, आप कोई रिसर्च पेपर, तो आपके बहुत सारी फाइल्स एक साथ चलती है, तो वहां पर ये सारे फंक्शंस यूजफुल है। ओके, दिस वाज कट एंड देन कॉपी, जैसे आपका रेगुलर रहता है। पेस्ट, यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज एनलार्ज्ड व्यू, मतलब आपका एंड देन दिस इज स्मॉलर व्यू। अगर आप अकॉर्डिंगली परसेंटेज के हिसाब से, इफ इन केस यू वांट टू सेलेक्ट 400%, अगर आपको मैग्नीफाइड व्यू देखना है, दिस ऑल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। सो अगर आप यहाँ पर मल्टीपल पेजेस, इफ इन केस यू वांट टू इनकॉर्पोरेट, यू इनकॉर्पोरेट न्यू पेज एवरी टाइम, बट हाँ यहाँ पर फिलहाल वो एक ही पेज आएगा। सो फुल पेज फिलहाल इट्स सिलेक्टेड, इट वाज 100, चलो ठीक है ठीक है। डिस्कस्ड टेम्पलेट, नाउ व्हाट इज अच्छा, ओ दिस इज आइकन ओनली, फुल पेज एंड दिस, हाँ तो ये पूरा वही चल रहा है, मैग्नीफाइड एंड एवरीथिंग। ओके, ये कुछ फंक्शंस है जो शायद मैंने कभी खास यूज किए नहीं। खैर, जनरेट नेम फॉर स्ट्रक्चर। ओके, सो इफ इन केस या दिस इज इथेन मिथेन, सो अगर आपका क्लमजी नहीं है जो भी आपने मॉलिक्यूल बनाया है, नॉट क्लमजी, आपने क्लियर साफ बनाया है, तो वो उसको नॉमेनक्लेचर देगा अकॉर्डिंगली। अगर आपका कहीं भी बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम देगा। सो दिस इज हाउ इट जनरेट योर नेम। बाकी आरएस कंफर्मेशन आपको करना नहीं होगा, स्टीरियो ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ड्रॉ, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा अदरवाइज अपना। सो ड्रॉ में बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड था जो भी था। अब हम ड्रॉ में हमारे शेप्स विल बी देयर, जैसे हम सिंपल जैसे हम पावर पॉइंट वगैरह में करते हैं। सो आपको शेप चाहिए, आपको कर्व चाहिए, आपको जिगजैग लाइन चाहिए, अकॉर्डिंगली वो सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट वगैरह जो भी है, सो बेसिकली ये जो ड्रॉ वाला पार्ट है वो सब कुछ एक्चुअली वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। जो भी insert image, for example if in case you want to place circle, you want to place any shape, right? If in case you want to this is एक second, this is this एक second this should be नहीं, हाँ, so you select the molecule and then you select the bracket
एंड ये एक्चुअली आप स्ट्रक्चर से ऑलरेडी कर भी सकते थे, जो हमने ब्रैकेट वहां पर सेलेक्ट किया था, बट दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर पॉलीमर। तो वहां पर अगर आपने नंबरिंग देनी है या नहीं देनी है, दैट वाज योर कॉल। मतलब आप ये वहां से भी कर सकते हैं, जस्ट दैट कि वो जनरली पॉलीमर के लिए यूज होता है कि अगर आपको नंबरिंग नहीं देनी है, कुछ भी ब्रैकेट्स आउट में नहीं लिखना, तो ये आपका ऑप्शन होता है, कुछ मत लिखिए, वहां कुछ भी नहीं आएगा। बट इफ इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपको सिंपल ब्रैकेट्स रखना है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के लिए, इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर, आपने कोई टेक्स्ट लिखा एंड देन आप उसको ब्रैकेट देना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली वो है जो भी आपका टेक्स्ट से रिलेटेड। एंड देन इफ इन केस यू वांट टू अगेन यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट से रिएक्शन और समथिंग, देन यू कैन पुट योर टेक्स्ट हियर अकॉर्डिंगली। आई डोंट नो, चलिए एनीवे, सो zoom in. Okay, so this is again rotation only, जो आप ये देखिए, see whatever you are selecting, if in case say you select this, if in case you select this and then you want to rotate it, maybe शायद ये वो rectangle है इसलिए नहीं पता चल रहा, if in case I select this and then I want to rotate ये अकॉर्डिंगली जैसे हमने स्ट्रक्चर में भी रोटेट किया था। बट ये एक्चुअली अगेन वही बात है कि ये आपके शेप्स के लिए ज़्यादातर इट्स अबाउट शेप्स ओनली। एंड सिमिलरली ओके, ये सब आपके यूज होने वाले हैं नहीं उसके लिए, सेंटर वर्टिकली एंड देन अलाइन, सो ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर्स के लिए यूजफुल नहीं है। सो जो फिलहाल मैं एक मिनट मेरे को देखने दीजिए, कुछ important point ना रह जाए। generate name we have done, search for structure is something basically कि जब आप नाम डाल के you search for that structure कि if it is present in this ChemSketch का database or not, so that is what it is। smile notation I don't know, never tried but because never gave it in 3D viewer is same thing, but वो ये structure होगा तो वो 3D viewer वो 3D view open करेगा। एंड आई गेस मैंने आपको सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो बताए हैं, बट ओके टूल्स, ये तो पेन स्टाइल, फिल स्टाइल, ओके, फॉर एग्जांपल इफ इन केस यू वांट टू अप्लाई from okay, I don't know, ये सब never tried। कौन नहीं, मेरा एक ही था, मैंने कर दिया। हाँ अभी आएंगे ना, अब आएंगे ना, फर्स्ट ईयर के। ओके ठीक है, आई थिंक एड्स ऑन इज नहीं, सर्च वर्च आपको कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स तो इट्स जस्ट अबाउट जो भी आपके डॉक्यूमेंट ओपन वगैरह करना हो, सब टेम्पलेट विंडो, टेम्पलेट ऑर्गेनाइजर, टेम्पलेट विंडो इज सेम थिंग जो हम यहाँ पर देखा था, इट इज सेम, जिसका आइकन यहाँ पर दे रखा है। सो टेम्पलेट्स में टेम्पलेट ऑर्गेनाइजर इज देयर, जो ये रहे आपके इतने सारे टेम्पलेट्स। तो बेसिकली ये टेम्पलेट ऑर्गेनाइजर का मतलब है जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो आपके टेम्पलेट विंडो में आ जाएगा। सो सी फॉर एग्जांपल मैंने ये सब सेलेक्ट किया, नाउ टेम्पलेट विंडो में इवन मोर विल बी देयर। सो एरोमेटिक्स एंड कार्बोहाइड्रेट अगर मुझे और ऐड करने हैं ये टेम्पलेट से, टेम्पलेट ऑर्गेनाइजर जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग आई ऐड इट विल बी अ पार्ट ऑफ, क्योंकि सब कुछ हर टाइम यूज नहीं करना, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर टेम्पलेट विंडो। तो इट विल कीप ऑन कमिंग, तो जो भी आपको एक्चुअली टेम्पलेट विंडो में इमीडिएटली चाहिए तो वो आप टेम्पलेट ऑर्गेनाइजर से ऐड करते हैं, सब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। देन ऑब्जेक्ट ब्रिंग टू फ्रंट, यार ये सब प्लीज कीप ट्राइंग बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, सो इवन आई हैव नॉट ट्राइड इट मच। एंड देन योर फाइल सेव, सो हाँ व्हेन नेक्स्ट टाइम अभी एक ट्राई कीजिएगा साथ साथ ही कोई स्ट्रक्चर बनाने का जो मैं देती हूँ आपको। इन द मीनवाइल आई चेक कि कलर्स वगैरह कैसे चेंज होते हैं कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो व्हेन यू हैव मेड द स्ट्रक्चर, आपको जब भी नेक्स्ट टाइम सबमिट करना होगा वो आपको ऐसे सबमिट करना होगा, वट एवर यू मेक यू जस्ट सेव दिस फाइल, सेव एज, उसको अपने रोल नंबर से सेव कीजिए या जिससे भी आपको सेव करना है। बेसिकली रोल नंबर बिकम्स ईजियर क्योंकि फिर अंदर कहीं इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, मैं डाउनलोड करती हूँ तो मेरे लिए ईजी है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। एंड देन यू सेव दिस फाइल एंड देन यू हैव टू सबमिट इट ऑन LMS, सिंपल। इसको बना के कहीं भी जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया उसको आप कहीं भी कॉपी
पेस्ट करके जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में या पावर पॉइंट फॉर्मेट में मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो आप वैसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे डायरेक्टली ये फॉर्मेट में चाहिए। और फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए, फिलहाल मैं ये टेम्पलेट से उठा रही हूँ, मान लीजिए आपको ये स्ट्रक्चर बोला गया कि आपको ये बनाना है एंड यू मेड इट राइट एंड डन। सो आपने ये बना लिया। नाउ हाउ यू हैव टू सबमिट इट, यू विल सेव दिस, सेव एज any location you want to, you'll save it, you save it here, and then you submit the file on LMS. This is what is required. अब जिन लोगों का ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, you guys what you will be doing, आप इसका कोई भी सब्सटीट्यूट अकॉर्डिंगली जो भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, you can use it and then you can share your screen. The moment you submit it, now you can let me know, ma'am, we have submitted, and you can share your screen. I'll note the time because that is important. So this is how you will proceed. तो सिंस जो आप फॉर्मेट करेंगे वो आप सेव एज करके वो फॉर्मेट मुझे फॉरवर्ड करेंगे, तो वो मेरे पास ऑब्वियसली कंपैटिबल नहीं होगा तो नहीं खुल पाएगा, बट देन यू कैन सेव इट एज से इमेज और समथिंग, यू कैन सेव इट एंड देन यू कैन शेयर इमीडिएटली द स्क्रीन, योर स्क्रीन। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे टू प्रूव दैट यू हैव एक्चुअली डन इट ऑन योर लैपटॉप और जो भी है, तो देन ओनली विल गेट मार्क्स। इफ इन केस यू सबमिट इट ऑन LMS एज से एनी इमेज और समथिंग और PDF and then you have not shown it to me in person जब आपकी क्लास चल रही है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, straight away you will get 0। तो अगर आपका ये सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी सॉफ्टवेयर यू कैन गो फॉर, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर देयर। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए मैं बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर रही हूँ। इट विल नॉट बी लाइक कलर चेंज वगैरह दिया जाएगा, इट विल बी जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा नेक्स्ट टाइम, दैट विल बी स्ट्रेट अवे स्ट्रक्चर। उसमें प्रोजेक्शंस हो सकती हैं, प्रोजेक्शंस इन द सेंस इट कैन बी अबव द, मतलब जो आपकी डैश्ड वेज एंड डैश जो आपके बॉन्ड्स रहते हैं वो हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है आपके अबव बिलो द प्लेन, आपके क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कैन बी देयर, जो भी होगा आपकी मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा। सो इट कैन बी रेजोनेंस, इट कैन बी कैटायन, इट कैन बी रेडिकल, ये सब चीजें, इट कैन बी हो सकता है उसका नेम साथ में दिया हो, तो ये सब चीजें, डेकोरेशन वगैरह वाला पार्ट नहीं होगा। So maybe numbering will be there, so maybe manual numbering can be there, so all that features. So basically structure जो भी हमने बनाया है, आज किया है, उससे रिलेटेड आपको अगली बार असाइनमेंट मिलेगा। So अगर आप जो भी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उस पर अपना हैंड्स ऑन ले लें, क्योंकि उस समय आपको दिखाना पड़ेगा क्लास के टाइम पर ही, एंड वही टाइम आपका कंसीडर होगा सबमिशन का। प्लीज योर डाउट्स बेटा, जो मैंने समझाया है उसमें। मैम कलर कैन बी चेंज, Color pen, I'll check. In the meanwhile, please try, for example. Yeah, you did मैम it. we have to select, मैम we have to select the atom which उस कलर we want to change, and then मैम लेफ्ट साइड में मैम कलर्स के ऑप्शंस मैम उस पे क्लिक कर देंगे। एक सेकंड, लेफ्ट साइड में कलर्स के ऑप्शन है, देखिए आई सेलेक्टेड मैम कार्बन डाउन, मैम अब चेन बना दी सेकंड, मैम बनाई है मैम। अच्छा ओके, आई मेक अ चेन, डन। या मैम अब मैम सिलेक्ट वाला जो ऑप्शन होता है मैम उस पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट वाला ऑप्शन मतलब कलर्स में बोल रहे हो? मैम नो मैम ऊपर की तरफ मैम, जिससे हम सेलेक्ट करते थे पूरी This चेन को one? या फिर किसी पर्टिकुलर आइटम। यस मैम। हाँ ओके अब डन। मैम किसी भी क्लिक ओके ओके ठीक। सो बेसिकली वो सिर्फ जो भी आपके उसके हिसाब से जो भी आपके वो अल्फाबेट्स हैं, बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन या जो भी हैं, जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको कलर करेगा, बॉन्ड्स वगैरह को नहीं करेगा। बट आई गेस बॉन्ड को भी होना चाहिए, फिर कुछ बॉन्ड का भी होता होगा फिर। मैम ये बस मैम पर्टिकुलर मैम सपोज कीजिए मैम कार्बन के लिए हमने ब्लू लिया, तो मैम जितने भी कार्बन ये शो करेगा वो ब्लू कलर में शो करेगा। ऐसे ही मैम हाइड्रोजन के लिए अगर हम पर्टिकुलर कर लेते हैं, जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सेम कलर के। ओके लेट्स ट्राई। बेटा ये सब ना सच में ब्यूटिफिकेशन हैव नेवर डन, बट जस्ट से now you said I select it all. Oof. Selected it and then no, it's taking everything yellow. मैम एक्चुअली मैम हमें सिर्फ हाइड्रोजन सेलेक्ट करना है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि let me do this also.
So for example, if in case I've selected OH, okay, I've selected OH and then yellow, तो उसी को किया। अच्छा, वैसे मुझे लगा ये खुद ही ले लेगा सारे जितने OH हैं उनको खुद ही येलो करेगा। ओके, सो दैट वी कैन। सो आई थिंक फिर तो हम बॉन्ड्स को नहीं कर सकते, वी कैन नॉट। ओके, सो ओके, कलर आई गॉट। सो बेसिकली आपको सेलेक्ट किया, जिस भी आपने मॉलिक्यूल को सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड इट एंड देन आपने उसको कलर कर दिया जो भी आपको देना है। पता नहीं, आप बोल रही है कि ये बाय डिफॉल्ट सबको एक साथ ले लेगा, मेरा तो नहीं ले रहा। अगर इफ इन केस मैं बाय डिफॉल्ट चाहती हूँ सारे कार्बन ब्लू हो जाएं, और ऐसा तो नहीं है, आई गेस मुझे करना पड़ेगा मैनुअली। नो मैम, कार्बन्स मैम सारे ब्लू हो जाएंगे मैम। अभी मैम जैसे कैसे? आप किसी भी बीच में मैम दिखाता हूँ। अभी तो मैम 3D व्यू मैम, कोई भी एक बॉन्ड बना दीजिए मैम। CH3 लिखा हुआ था तो मैम वो ब्लू कलर का लिखा हुआ था। जैसे मैम आप ये जो चलो ठीक है, बीच में और मैंने बीच इसमें ऑक्सीजन, चलो अभी अब मैम 3D व्यू वाला जो मैम ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कीजिए। मैं इसको पहले सेलेक्ट करूं। सिर्फ इसी कार्बन को किया ना? हाँ, अगर मैं आई गेस कंट्रोल, अगर मैं दूसरे को करूंगी वो दूसरा करके करेगा। पता नहीं आपका हो रहा है तो आई डोंट नो, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया, हो सकता है आप सही बोल रहे हो, बट मेरे पार्ट पे मैं जिस मॉलिक्यूल को कर रही हूँ बस उसी, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पार्ट पे सिर्फ कार्बन हो पा रहा है, हाइड्रोजन अलग हो पा रहा है, मेरे पार्ट पे नहीं हो पा रहा। बट ठीक है, वो मैं दूंगी भी नहीं, बट हाँ आई वांट टू लर्न। अगर हो पाए तो बता दो भाई, कि अगर इन केस आर यू एबल टू डू दिस, कि फॉर एग्जांपल यू सेलेक्टेड दिस बट पर्टिकुलरली कार्बन गॉट ब्लू एंड हाइड्रोजन यू कुड कोड बाय सम अदर कलर। आई थिंक नहीं ना, आई डाउट, आई डोंट नो, ये तो मुझे समझ आ गया। चलिए एनीवेज, आप लोग प्लीज ट्राई कोई भी स्ट्रक्चर बनाने का। कलर इज ऑल्सो डन। बाकी 3D वाला सिंस मेरे पार्ट पे खुल नहीं रहा है, आप बहुत अच्छा उसको देख पाएंगे अगर आपके पार्ट पे खुल रहा है। प्लीज ट्राई इट आउट ऑल्सो। वो बहुत यस। Ma'am, please once again tell about resonance option. ओके, जस्ट अ सेकेंड। Okay, so for example, say you took this, okay, and then you made butadiene. So now delocalization, you select this whole molecule and then you want to delocalize. So this is charge delocalization basically. Resonance as in what exactly do you want to ask? This delocalization only? Yes, ma'am. हाँ, सो दिस इज चार्ज डिलोकलाइजेशन। अगर आपने मान लीजिए इसको एक्सटेंड भी कर दिया, फॉर एग्जांपल इफ इन केस यू प्लेस से दिस हियर एंड देन, तो आपने जितना पार्ट सेलेक्ट किया वो उसी पर डिलोकलाइजेशन दिखाएगा। सो दिस इज हाउ इट गोज। अगर आपने इसको और आगे तक सेलेक्ट किया तो वो पूरे उसने पार्ट पर डिलोकलाइजेशन। तो दिस इज नोटेशन की आपका बेसिकली सिंस जैसे हम ऑब्वियसली दैट इज अ डिसीजन, मतलब वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन से कार्बन्स पर डिलोकलाइज हो रहा है। दिस इज वी हु हैव टू डिसाइड कि अगर यहाँ पर ब्यूटाडाइन है तो इन्हीं 4 कार्बन्स पर ये डिलोकलाइज हो सकता है, आगे डिलोकलाइज नहीं। बट इफ इन केस यू सेलेक्ट कंप्लीट मॉलिक्यूल इट विल डू, वो डिलोकलाइजेशन दिखा देगा। सो दिस इज वी हैव टू हु हैव टू डिसाइड कि डिलोकलाइजेशन किस पर होना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ इन Okay, केस, ma'am. व्हाट आई मीन टू से इज, अगर मान लीजिए मैंने ये लिया और एक्चुअली इट वाज दिस, इट वाज दिस एंड दिस, बट मैंने क्या किया, आई सेलेक्टेड यहाँ तक एंड आई मेड दिस। तो उसको क्या फर्क पड़ता है, वो सब में दिखा देगा, बट एक्चुअली इट वाज दिस डबल बॉन्ड्स वर हेयर ओनली, तो डीलोकलाइजेशन यहीं पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ है, ये तो गलती हो गया, खैर, बट दिस इज व्हाट आई मीन। तो वो जहां तक आपने सेलेक्ट किया इट विल शो डीलोकलाइजेशन, बट दिस इज यू हु हैव टू डिसाइड कि डीलोकलाइजेशन कहाँ तक होना है। एक सेकेंड बेटा, अंशिका एंड पार्थ इसी क्लास में है ना? ओके, Yes, ma'am. जसलीन, सिद्धार्थ, मोहित, डू यू वांट टू से समथिंग? आपके हैंड्स अभी भी
और ये पहले के ही हैं, जसलीन, सिद्धार्थ, पार्थ. नो, ओके, पार्थ ही है. Okay then. Any other thing? You try it out and then please ask. And try out that 3D part also. That is also interesting. Maybe I give also, but मैं अभी फिलहाल डेमो में दिखा नहीं पाई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं दूंगी. बट यू ट्राई. Maybe next time I give demo because अभी काम ही नहीं कर रहा मेरा. I can't do this right now. It is very much interesting, but so please 3D वाला पार्ट भी देखिएगा. ऑल्दो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, बट हाँ, उससे नेक्स्ट टाइम इज पॉसिबल. Should not contain delocalization. हाँ, delocalization 3D में नहीं दिखा. करेक्ट. सो जो भी है, चलिए. एनीवेज, टेक इट फ्रॉम टेम्पलेट. कोई आसान सा. हाँ, ये इशिका. ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपकी क्लास अलग ही होगी, आपके टीम्स पर ही होगी. इस बार के लिए सिर्फ ये था. हाउ आई शेयर दिस लिंक आप लोगों के ड्राइव में, ताकि मतलब डाउनलोड करके ये वाला, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. जैसे लेक्चर्स के लिंक है, अदरवाइज प्रैक्टिकल के जनरली आई डू नॉट शेयर बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, पर इसका आई शेयर. ओके, ट्राई इट आउट. जो भी है, मेरा तो नहीं चल रहा है, आपका चलेगा, करिए. हाँ, नाउ या सो एनीवेज, हाँ, सी, धीरे धीरे कर रहे हैं मेरा काम, बट ये बहुत क्विक है. अदरवाइज अगर आप अपने पार्ट पे करेंगे, यू माइट फाइंड इट वेरी क्विक. सो दिस इज रोटेशन एंड देन सी, यू कैन रोटेट any way you want to. चलिए, एनीवेज, keep trying it. So फिलहाल